ಸಾಕಿಬ್ ಸರ್ We want justice. 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 स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जान बचाने वाले डॉक्टर की ही जान की सुरक्षा अब नहीं रही, तो देश भर में जो है ये हादसा, बड़ी दर्दनाक वाक़या जो है आरजी कॉलेज कोलकाता, जो वहाँ पर एक डॉक्टर के रेप होता है और उसका मर्डर होता है। तो इसी को लेकर पूरी देश भर में जो है ये चला हुआ प्रोटेस्ट चला हुआ है। और तो पीड़िता जो है जो ट्रेनिस डॉक्टर थी, जो पीजी सेकेंड ईयर में ट्रेनिस डॉक्टर थी, और उसका जो है बुरी तरह से मर्डर होता है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज बीजापुर के अल-अमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया और वी वांट जस्टिस का नारा लगाया और कैंडल मार्च भी किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, हम बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए जी। हम छोटे से बड़े लोग इतने डिफ़िकल्टी से आते पढ़ते, रात सारी नींद नहीं रहती, फिर आगे आके भी ऐसा हुआ तो कैसा? कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं रहता हमें। सिर्फ मेडिकल नहीं है, सारे प्रोफेशन में ऐसा हो रहा। और मेडिकल स्पेशली वी आर हीलिंग पीपल, and if it happens again like this, and it has happened again like this, I'm not telling that it's the new one, it has happened again like this, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर। जस्टिस तो चाहिए सर, नहीं रिपीट होना चाहिए फिर से। सिर्फ हमारे कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा रिपीट होता तो क्या सर? See, people talk about women empowerment, that girls should come front, beti bachao, beti padhao. There is no protection for girls, and you are asking us to come front and do things. What she was doing, she was at her work, not even at club, partying nahi kar rahe the, wo kuch nahi. There is no protection in the hospital premises only. Where will she go? Where has to she work? This is her workplace only. She was a resident doctor. There is no protection for her. Why are we supposed to heal people? No people are protecting us. We are we should do our work. We have taken our oath, all these things we'll talk about. But where should we go for protection? There's no law or nobody comes to talk about her. And moreover that they're trying to remove all the evidences. That's really not acceptable. We want justice. These things should not repeat. I don't think saying this thing should not repeat will work. But still people should take it seriously and think about not only doctors, girls and women empowerment is really required. ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾಳೋ ಆವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 76 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ. ಆದರೂ ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಡು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏನೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ತಾವು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳು ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ವರ್ಷ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಓದ್ಸೋಕೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಏನು ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕೋಸ್, ಡೆಂಟಿಕೋಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ उसके ऊपर द फर्स्ट मेन कंसर्न द गर्ल डॉक्टर
who has been raped and brutally murdered in Arjikar Medical College. We stand in support for her to get justice for what unlawful murder which has been happened to her. This makes us question the system. This makes us question how doctors are protected. At what stage are we? 76th Independence Day is coming tomorrow, and here we are standing, hearing news like a girl doctor is being murdered at duty. If a lawyer is murdered inside a courtroom, the killer is jailed. If a police is murdered inside the police station, he is jailed. But if a doctor is murdered inside a hospital, what she gets? It is labeled as suicide. This is the biggest hypocrisy that is happening in our country right now, and this has to change. Every girl needs protection for her safety and for her colleagues, let alone a doctor at duty. What message to pass the PM? To Honorable Prime Minister of the country, just one small request: protect those who protect us. Don't protect the people, protect the doctors who are protecting the lives of other people. This is what is our motto and has always been along the way. We request the Honorable Prime Minister, the Chief Minister of the state, to take legal actions, and the rapist has to be hanged. This is the clear-cut message coming from each one of us, and there has to be separate provision for protection of doctors on duty. This has always been our motto, and working without safety is not something that we will advocate to. We are humans first. Our girl, all the doctors, all the lady staff of our hospital, all the nurse staff, all the doctor staff, everyone needs protection of the equal amount, and that justice has to be given to them. जो भी हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार। हम जो भी यहाँ पर इस फील्ड पे आते हैं सब कुछ चैलेंज करके आते हैं। आजकल जहाँ पर लड़कियों को बाहर रहने के लिए टोक है, बाहर जाने के लिए टोक है, अब जहाँ पर लड़की बाहर जाके काम कर रही है, फिर भी यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ, ये बोल रहे हैं कि वो रात में वहाँ कर क्या रही थी। ये उनका ये एजेंडा है कि आप उन पे लेबल डालो कि वो बाहर क्यों थी, वो बाहर क्या कर रही थी, और उसके साथ जो हुआ वो उसकी गलती, उसने क्या पहना था, वो कहाँ थी। गलती लड़की की कैसे हो सकती है? उसकी गलती ये है कि वो लड़की है। अगर लड़कियां सेफ़ होंगी तभी हमारा देश सेफ़ होगा, और यही शायद पीएम मोदी अपने सारे भाषणों में, सारे प्रोटेस्ट, सारे इसमें बोलते आए हैं। तो वो सिर्फ वहाँ स्कीम तक ना रहे, जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम है वो वहाँ तक ना रहे, जो हमारी भाग्य लक्ष्मी है, जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोरोना का टाइम आया था यही डॉक्टर्स अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ पर खड़े थे, और आज इन्हीं को अपने घर परिवार से दूर होके अपनी जान की गारंटी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की सीएम भी जो तो है तो महिला ही है। ये तो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। बाकी जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स दो पार्टियों में होता है, पर जो चोट लगती है वो जनता को लगती है, और उसके लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंस डे इस मरतबा कैसा रहेगा? आई थिंक इस मरतबा हर महिला के लिए इंडिपेंडेंस डे ये होगा कि वो इंडिपेंडेंटली घर से बाहर कदम रखे, और उसके आजू बाजू जितने लोग हैं, उनके रिश्तेदार में हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके कॉलीग हो, वो इतना अपने एंड से सिक्योर कर पाए कि हमारी दोस्त, हमारी बहन, हमारी जो नाते में है, वो मेरे वजह से मैं अपना हिस्सा अदा करूँ और उसे सेफ़ फील कराऊँ। महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? मेरे कॉलेज में तो हैं। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर कॉलेज में हो। तो आप देख सकते हैं कि अल अमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो छात्र हैं, डॉक्टर छात्र हैं, वो जो है बाकायदा जो है अपने आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में जो ट्रेनिज डॉक्टर का जो रेप और मर्डर हुआ वो आगे ना हो, इनका भी कहना है। और उन्होंने जो है स्कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से मनवी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कातिल को सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। इस बारिश में भी जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ख़ासकर लड़कियों के प्रोटेक्शन के बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
कलकत्ता के जो आरजीकर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ और रेप और मर्डर का हादसा हुआ, और इसी को लेकर अल अमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पूरे मेडिकल छात्र जो हैं आज रास्ते पर उतरे हैं और उन्होंने जो है कैंडल मार्च भी किया है और जल्द से जल्द जो है आरोपी को फांसी देने की मांग उन्होंने की है। और उनका ये स्लोगन भी है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को फांसी दे और ये घटना जो है दोबारा न हो। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल अमीन हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर ಜಿಲಾನಿ ಔಟಿ ಸರ್। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ आज जो ने हमारे अल अमीन के हॉस्पिटल के सामने पूरे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स यानी अंडर ग्रेजुएट MBBS स्टूडेंट्स और इंटर्न्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर जमा हुए हैं कि आज जो 9 तारीख जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है, जो हमारे एक लेडी डॉक्टर को जो नहीं रेप करके दरिंदों ने रेप करके मर्डर किया गया है। ये बहुत एक शर्मनाक जो हादसा हुआ है। ये पूरी दुनिया जो नहीं परेशान है इस ये दरिंदे की तरफ से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको हम जो है कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि उस दरिंदे को जो नहीं फांसी सज़ा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी चीज़ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो नहीं जहाँ पे सेमिनार हॉल में जो नहीं उसको जो नहीं ले जाकर जो नहीं इन दरिंदों ने, मैंने नाम सुना है, क्या नाम उसका संजय राय बोल के एक नाम शख्स है और साथ ही साथ उसके दोस्त भी है, दरिंदे दूसरे दरिंदे हो गए। उन दरिंदों ने उस लेडी डॉक्टर को जो नहीं हत्या करा है, मर्डर करा है, रेप करा है। तो ये बहुत बुरी घटना है। हम खड़ी से खड़ी इसको निंदा करते हैं और हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो नहीं उस दरिंदे को जो नहीं फांसी सज़ा होने के लिए हम जो नहीं रिक्वेस्ट करते हैं। इस गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज वो दरिंदे को फांसी देने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया केस के बाद भी संभला नहीं है हमारा देश, इसलिए जो नहीं सज़ा नहीं है हमारे पास। सज़ा क्या होना चाहिए? सज़ा फांसी की सज़ा होना चाहिए। अगर आज मैं जुल्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए सज़ा खड़ा सी होना चाहिए। कोई इंसान हो, तो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, जब बुरा इंसान बुरा करता है तो उसके लिए खड़ी से खड़ी सज़ा होना चाहिए। यानी इसके लिए ये रेपिस्ट के लिए जो है क्या सज़ा फांसी देना चाहिए। सब मिलकर उसको फांसी देना चाहिए, यानी पत्थर से मारना चाहिए उसको। जो भी हमारा कानून है, हमारे देश का कानून है, उसको फॉलो करना चाहिए। खड़ी से खड़ा उसको सज़ा देना चाहिए। हमारे तरफ से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको जो है इमीडिएटली फांसी देना चाहिए। पूरे जो नहीं आज यहाँ पर पूरे जो है हमारे जो नहीं तकरीबन जो नहीं एक 10-15 हज़ार हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जमा हुए हैं। लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं जो रात दिन मिलाकर पेशेंट को सेवा करते हैं, उन्होंने जान बचाने का काम करते हैं और उन्हीं के साथ जो नहीं इस तरह जो नहीं दर्दी हो रही है, तो इसको हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द फांसी सज़ा होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर ಜಿಲಾನಿ हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ अल अमीन हॉस्पिटल में। तो 8 अगस्त की ये घटना थी और 8 अगस्त के अब तक जो है पूरे देश में जो है डॉक्टरों का स्ट्राइक चला हुआ है और पीजी ट्रेनीज डॉक्टर की जो बर्बरता हत्या हुई है और इसको लेकर जो है पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर फांसी की सज़ा दी जाए और आने वाले दिनों में ऐसी घिनौनी घटना न हो। निर्भया 2.0 तो आपने निर्भया केस तो आपने सुना था, लेकिन निर्भया केस के बाद भी जो है एक और निर्भया
के साथ ये घटना भी है और आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो, यही इनकी मांग है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या करती है, आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है और महिला किस हद तक सुरक्षित हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।